let's start from the top. What inspired the idea behind the Steak Fest at El Momento? Let me first introduce you to El Momento Steakhouse. So we have started this restaurant for last 3 years. तो उससे ये था कि 3 साल में हम लोगों की इनिशियली हमने लाहौर से स्टार्ट किया, फिर इस्लामाबाद में आए. तो यहाँ पे आके हमने बिकॉज इट्स अ स्टेक हाउस एंड द बीफ स्टेक्स वर डूइंग रियली गुड द सेल्स. सो ओवर द ईयर ऑफ 1 year हमने देखा कि जो हमारी सेल्स हैं वो बहुत कंसिस्टेंट हो रही थी और मेजर जो पोर्शन था वो बीफ स्टेक का था. तो देन वी थॉट दैट वी शुड कम अप विद अ कैंपेन जो थोड़ा हमारी इसको बूस्ट करे सेल को, और एक तो हम थोड़ा चाह रहे थे कि हम ज़्यादा लोग जो हैं वो आके हमारे स्टेक को ट्राई करें. सो दैट वाज द मेन रीज़न गोइंग फॉर दिस स्टेक फेस्ट. What was the main strategy या आपका vision behind turning this event into such a massive success? एक्चुअली जो मेन स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि एज यू नो द बीफ स्टेक्स आर वेरी एक्सपेंसिव. सो हम चाह रहे थे कि मासेस को हम अपने रेस्टोरेंट में बुलाएं और स्टेक को ट्राई भी कराएं. तो उसके लिए वी वेंट फॉर ऑल यू कैन ईट. So I think that was the main thing which really turned this into such a massive campaign. How did you and your team plan and execute the event on ground? What were the key elements that made it work? The idea of Steak Fest, it was in my mind for a long time. But my media partners, which are Emerald Media, they played a very, I must say, a very good role in that, because we sat together and they give this idea of all you can eat. So all of the team, my chef, my manager, the marketing team, we planned everything. We jotted down all the details, how to go about it. कि हमने कैसे रेस्टोरेंट पे जाके हमने DVCs बनाई, कैसे हमने शूट किया, हमने वहाँ पे जो इर्द गिर्द ऑडियंस थे उनको बीच में हमने इंक्लूड किया. सो ये सारी चीज़ें जब फाइनली एक साथ मिलके चली तो फिर बहुत अच्छा एक प्लान हमारे सामने आया. 15 lakh in sales and house full. Did this level of success surprise you or was it expected? Well, to be honest, I wasn't expecting that, क्योंकि हमारी जो नॉर्मली सेल्स होती हैं उससे तकरीबन 3-4 टाइम्स ज़्यादा ये सेल थी. सो ज़ाहिर मैं एक्सपेक्ट तो कर रही थी कि एक जिस तरह से मार्केटिंग लेके इस स्ट्रैटेजी और इस कैंपेन को वो लोग चले थे कि अच्छा रिस्पॉन्स आएगा. लेकिन जब एट द एंड ऑफ द डे रात को जब मैंने सेल्स की शीट देखी एंड 15 लाख, सो दैट रियली वाज अ सरप्राइज एंड आई वाज वेरी हैप्पी. How important was digital marketing or word of mouth in driving traffic for this event? That's a very good question, because I believe that digital marketing and word of mouth, they both play a very essential role. Although they play their own different roles, as the digital marketing, it is like an engine, because very fastly and swiftly it takes your message to your target audience. Also, the digital marketing, it is scalable and measurable. And as far as the word of mouth is concerned, I think that is your trust builder. Because word of mouth में ये होता है कि कोई जो आपके रेस्टोरेंट से बंदा हो के गया, आपका खाना और स्टेक हो, whatever the thing Through is. links and the people they are following, right? Yes, definitely. Influencers भी उसमें इंक्लूड होते हैं और इवन आपके फ्रेंड्स भी, बिकॉज एक ट्रस्ट Food फैक्टर bloggers होता है. we have, like. Yes, और उसमें एक ट्रस्ट फैक्टर है तो लोग उसको ज़्यादा सुन के जाते हैं आपकी चीज़ ट्राई करने. सो आई थिंक बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. और हमारी कैंपेन में भी आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, और जिसकी वजह से दैट वाज द रीज़न कि वी हैड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. What challenges did you face during the planning or event days, and how did you overcome them? To be honest, on the event day, there was no such problem we faced. But during initially when we were planning things, तो कुछ हमारे challenges थे. जैसे selling price को लेके था, क्योंकि हमें ये हो रहा था कि हम किस price पे sell करें, जिसमें because all you can eat था, तो ये ना हो कि बाद में हम कहीं losses ही bear कर रहे हों. तो एक वो challenge था. फिर एक ये भी था कि हमें ये नहीं idea हो रहा था कि हम कितने दिन की campaign रखें. So that was a major challenge, क्योंकि बहुत कम में भी हमें problem आ सकता था, और ज़्यादा दिन के लिए कर लें तो कहीं उसका momentum ना break हो जाए. सो ये चैलेंज था. और फिर कि हम कितने कस्टमर एक्सपेक्ट करें ये हमें नहीं पता था. सो आई थिंक दीज वर द लिटिल थिंग्स जो हमें एज अ चैलेंज हमें फेस करनी पड़ी थी. For other restaurant owners listening, what would be your 2-3 key tips to create a buzzworthy, high conversion campaign like Steak Fest? अगर मैं बाकी रेस्टोरेंट ओनर्स को कोई टिप्स देना चाहूँ तो आई थिंक सबसे पहले तो ये होगा कि जो आपकी ऑफ़र है ना, दैट शुड बी रियली गुड एंड वेरी अट्रैक्टिव, लेकिन लिमिटेड भी होनी चाहिए. ठीक है, आपकी ऑफ़र अगर आप कोई ऑफ़र कर रहे हो तो या तो वो जैसे आप उसको वीकेंड से कर दो लिमिट, या 1-2 दिन के लिए रख लो,
क्योंकि आई थिंक जितनी लिमिटेड होती है ना उतनी अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि लोगों में एक वो फोमो इफेक्ट आ जाता है कि कहीं हमसे मिस ना हो जाए. सो दैट इज़ वन पॉइंट आई गेस. सेकेंडली, whatever the campaign is, you have to make the locals talking about it. So the local can be the normal, the people, or then the influencers or the bloggers. And the students as well, I Yes, feel like. definitely the students too. Because उससे ये होगा कि जब लोग उसके बारे में बात करेंगे तो definitely कहीं ना कहीं वो आपका मैसेज बहुत आगे तक पहुँचेगा और फिर आपका कन्वर्जन रेट भी अच्छा होगा. एंड थर्डली, आपकी जो भी कैंपेन है वो बहुत मोबाइल फ्रेंडली, विजुअली बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, टारगेट ऑडियंस आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए. सो डेफिनेटली आई थिंक ये 2-3 चीज़ें हैं कि जिनको अगर आप अच्छे से फॉलो कर लो तो आपकी कैंपेन बहुत अच्छे से हो सकती है.